Good evening, students. Now we are going to start with our social science book, and here is the unit 1, India Physical Division. This is chapter 1, India. अभी हम सबसे पहले एक लाउड रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की, और मेरे करने के बाद आप इस वीडियो को रोक देंगे और खुद लाउड रीडिंग करेंगे 2 टाइम्स. जिस वर्ड में कंफ्यूज होंगे आप उस वर्ड को देखेंगे और फिर से रीड करेंगे उसे. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द reading. Get going. India is one of the major countries of the world. Just like you have neighbors living besides your house, India also has neighboring countries around it. Do you know the name of any of our neighboring countries? We will read about the location of India in the world map, India's neighbors, the political divisions of India, the physical divisions of India. India, our motherland, is the 7th largest country in the world. Its area is around 3.287 million square kilometers. The 6 countries bigger than India are Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia. In population, India ranks 2nd in the world after China. Location and extent. India is located in the southern part of Asia, the largest continent in the world. Can you locate India in the following map of the world? The dark red area shows the location and the extent of India. India consists of the mainland and 2 groups of islands, the Lakshadweep in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal. It stretches around 3,214 kilometers from North Kashmir to South Kanyakumari and about 2,933 kilometers from east Arunachal Pradesh to west Gujarat. The land frontier of India is about 15,200 kilometers long. The coastline of the mainland is about 6,100 kilometers long. The total length of the coastline includes that of the scattered islands is about 7,516.6 kilometers. India's neighbors. India shares its boundary with many countries. These countries are called our neighbors or neighboring countries. These countries are as follows: Pakistan and Afghanistan to the northwest, Nepal, Bhutan and China to the north, Bangladesh and Myanmar to the east, Sri Lanka and Maldives to the south. Sri Lanka and Maldives do not share land borders with India. Do you know we do not need a visa to visit our neighboring countries Nepal and Bhutan? Political divisions. India is a huge country with a population of more than 125 crore. In order to run our country smoothly and take better care of our people, it is divided into 28 states and 9 union territories, including the National Capital Territory of Delhi. Do you know Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand were formed in 2000. Telangana was formed in 2014. Let's learn the names of different states and union territories of India along with their capitals. Andhra Pradesh, Hyderabad, proposed capital Amravati near Vijayawada. Arunachal Pradesh, Itanagar. Assam, Dispur. Bihar, Patna. Chhattisgarh, Raipur. Goa, Panji. गुजरात, गांधीनगर. हरियाणा, चंडीगढ़. हिमाचल प्रदेश, शिमला. झारखंड, रांची. कर्नाटका, बेंगलुरु. केरला, तिरुवनंतपुरम. मध्य प्रदेश, भोपाल. महाराष्ट्र, मुंबई. मणिपुर, इम्फाल. मेघालय, शिलोंग. मिजोरम, ऐजवाल. नागालैंड, कोहिमा. ओडिशा, भुवनेश्वर. पंजाब, चंडीगढ़. राजस्थान, जयपुर. सिक्किम, गंगटोक. तमिलनाडु, चेन्नई. त्रिपुरा, अगरतला. तेलंगाना, हैदराबाद. उत्तर प्रदेश, लखनऊ. उत्तराखंड, देहरादून. वेस्ट बंगाल, कोलकाता. नाउ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर. चंडीगढ़, चंडीगढ़. दादरा एंड नगर हवेली, सिलवासा. दमन एंड दीव, दमन. लक्षद्वीप आइलैंड, कावरती. पुडुचेरी, पौंडीचेरी. National Capital Territory of Delhi, New Delhi.
Jammu and Kashmir, Srinagar, Jammu, Ladakh, Leh. Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state of India. Uttar Pradesh has the highest population. Physical divisions. India has a varied landforms. It has high mountains, vast plains, deserts, plateaus and islands. Many rivers originate from the mountains and plateaus and flow through the plains. India can broadly be divided into the following physical divisions: the northern mountains, the northern plains, the Great Indian Desert, the peninsular plateau, the coastal plains, the islands. We will study about these physical divisions and the life of people in these places in the coming lessons. Do you know K2, also known as Mount Godwin Austen, located in India, is the second highest peak in the world. So, children, अभी हमने इस चैप्टर की एक लाउड रीडिंग करी है. अभी आप इसको रोक दो वीडियो को और उसके बाद इसकी 2 टाइम्स लाउड रीडिंग करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के अंदर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे. टिल देन डू योर वर्क इन द बेस्ट वे. स्टूडेंट, अभी हमने इस चैप्टर की एक लाउड रीडिंग ली है. अब हम इस पूरे चैप्टर को थॉरोली पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे इसकी. सो ओपन योर बुक्स क्विकली एंड ओपन पेज नंबर 5. ठीक है, मैं इस चैप्टर की आपको डिटेल में समझाऊंगी. आप अपनी बुक्स में ध्यान लगाएंगे और लिसन टू मी वेरी केयरफुली. चैप्टर 1, इंडिया. गेट गोइंग. इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया पूरे वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ में से एक कंट्री है. जैसा कि हमें पता है कि इंडिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है. बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लैंडफॉर्म है. कहीं पे हिल स्टेशंस हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट्स हैं. ठीक है ना. तो इंडिया एक डाइवर्स लैंड है. इसकी लैंडफॉर्म्स के स्ट्रक्चर में भी कि कहीं पे पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, कहीं पे ढलान हैं, और साथ में यहाँ के जो पीपल हैं वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं. जैसे कि हरियाणा में हम लोग हरियाणवी बोलते हैं और पंजाब में पंजाबी बोलते हैं. इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है. कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है. तो इसी तरीके से इंडिया क्या है, एक विविड कल्चर वाली लैंड है. सो जस्ट लाइक यू हैव नेबर्स लाइक बिसाइड्स योर होम. हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अपने पड़ोसी के नाम से जानते हैं. इंडिया ऑल्सो हैज़ नेबरिंग कंट्रीज़ अराउंड इट. उसी तरीके से इंडिया की भी कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो इंडिया के साथ में लगने वाली कंट्रीज़ हैं उनको हम बोलते हैं नेबरिंग कंट्रीज़. ओके, सो हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मैप. पूरे वर्ल्ड के मैप में इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, उसकी क्या लोकेशन है. ठीक है. देन इंडियाज नेबर, कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं, कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया के आसपास में सिचुएटेड हैं. द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. पॉलिटिकली डिवीज़न का मतलब है कि आसपास के जो, जैसे मान लो नेपाल है तो उसकी बाउंड्रीज़ कहाँ पे लगती हैं, या पाकिस्तान है वो किस डायरेक्शन में आता है. ठीक है, तो इस तरीके से वो हो गई इसकी पॉलिटिकल डिवीज़न. उसके बाद फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, कि कहीं पे जैसे हमारे नॉर्थ में क्या हो गए, माउंटेन्स हो गई. ठीक है, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें तो ये कैसा एरिया हो जाता है, ये थोड़ा डेजर्ट एरिया आ जाता है यहाँ पे. ठीक है, और हम हरियाणा की बात करें तो ये कैसा एरिया है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये प्लेन्स आ जाते हैं. ठीक है, तो कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे हमने इसको फिजिकल डिवीजन में कंसिडर करते हैं. सो इंडिया अवर मदरलैंड इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया जो कि हमारी मदरलैंड है, यानी कि हमारी मातृभूमि है, यानी कि जहाँ पे हमारी हम अपनी इंडिया को क्या बोलते हैं, अपनी मदरलैंड बोलते हैं, जहाँ पे हमने जन्म लिया हो. तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अभी आप ये चैप्टर समझेंगे, इन वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे और वीडियो के एंड होने के बाद पहली बात तो आप इसको दोबारा रिपीट करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. और साथ में इन सभी वर्ड्स को, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ में इनको लर्न भी करेंगे.
ठीक है, तो इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है और आपको इनका मीनिंग भी लर्न करना है। तो फर्स्ट जो डिफिकल्ट वर्ड आई थिंक आपको लगेगा वो होगा मदरलैंड। मदरलैंड यानी कि जहाँ पे हमारी मदर ने बर्थ लिया है या हमने जहाँ पे जन्म लिया है। सो इंडिया, अगर हम कंट्री की बात करें कि सबसे बड़ी कंट्री है, तो उस इंडिया की पोजीशन है 7th नंबर पे। इट्स एरिया इज अराउंड 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया लगभग कितना है? 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द 6 कंट्रीज बिगर देन इंडिया आर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो टॉप 6 कंट्रीज हैं जिनकी रैंकिंग इंडिया से पहले आती है, यानी कि इनका जो एरिया है वो इंडिया से ज़्यादा है। इन पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो इंडिया रैंक 2nd इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी कि इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। कैन यू गेस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? इट्स अराउंड 125 करोड़ पीपल। हाँ, हमारे इंडिया में लगभग 125 करोड़ लोग रहते हैं और ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में 2nd हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट कौन है? चाइना। चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 135 करोड़ के आसपास है। सो लोकेशन एंड एक्सटेंट। लोकेशन का मतलब क्या होता है? स्थान, यानी कि प्लेस या कोई ठिकाना कि कहाँ पे एग्जैक्टली इंडिया सिचुएटेड है। और एक्सटेंट का मतलब या फिर बाउंड्री कह सकते हैं कि बाउंड्रीज कहाँ तक फैली हुई है इंडिया की, उसको हिंदी में बोलते हैं सीमा। ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ से वो टच करता है, किस किस के साथ वो लगा हुआ है। ठीक है, सो इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया कहाँ पे लाई करता है? साउदर्न, सदर्न बोलेंगे इसे वैसे, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। एशिया कहाँ आता है? जब हम मैप को देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और इसके साउथ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तो इसके सदर्न पार्ट में लाई करता है कौन? इंडिया। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। कौन सा? एशिया। कैन यू लोकेट इंडिया इन द फॉलोइंग मैप ऑफ द वर्ल्ड? तो क्या आप वर्ल्ड के मैप में बता सकते हैं इंडिया कहाँ है? अगर अब फ्यूचर में, क्योंकि अभी हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो इसके बाद तो शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इंडिया कहाँ पे आता है, यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट में आता है और उसकी क्या क्या उसकी लोकेशन है। सो द डार्क रेड पार्ट, यहाँ पे ग्रीन लिखा है बट ये बाय मिस्टेक है, सो इसको कट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेड। डार्क रेड एरिया शोज द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो डार्क रेड कलर का जो पार्ट है ये किसको दिखाता है? इंडिया की बाउंड्रीज को, कि कहाँ से कहाँ तक इंडिया फैला हुआ है। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। इंडिया कंसिस्ट ऑफ द मेनलैंड एंड 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। मेनलैंड का मतलब होता है मुख्य भूभाग, यानी कि जो धरती है, जहाँ जहाँ धरती है, तो इंडिया कंसिस्ट करती है एक मेनलैंड, यानी कि पूरी जहाँ जहाँ लैंड है वो वाला पार्ट, एंड 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड बेसिकली एक ऐसी बॉडी होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है। तो 2 ऐसी बॉडीज हैं इंडिया के पास जो कि चारों तरफ लैंड से वाटर से फिल हैं, और एक उसकी मेनलैंड है। सो द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी इस साइड है, मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो अरेबियन सी, और ये वाला जो पार्ट है ये है लक्षद्वीप। और जब हम बे ऑफ बंगाल क्लियर हो गया, आई थिंक मैप में आप अपनी बुक में ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं, उसके साइड में जो पार्ट है वो क्या है? निकोबार आइलैंड। सो इट स्ट्रेचेस अबाउट 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ। स्ट्रेचेस का मतलब होता है हिस्सा, यानी कि उसका फैलाव कितना है या कितने एरिया में वो स्प्रेड हो रखा है। तो इट स्ट्रेचेस अबाउट 3214 किलोमीटर्स नॉर्थ से, जो कि नॉर्थ यानी कि सबसे ऊपर, साउथ यानी कि सबसे नीचे, इधर आ जाएगा ईस्ट एंड इधर आ जाएगा वेस्ट। सो नॉर्थ में क्या आता है? कश्मीर, और जो सदर्न पॉइंट है वो क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, तो नॉर्दर्न जो पार्ट है कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, एंड अबाउट 2933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट, यानी कि ईस्ट, इधर जो लास्ट पॉइंट आता है अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में आता है
गुजरात। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और ऊपर से लेके नीचे तक। गाना भी सुना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, इस तरीके से आपने चेन्नई एक्सप्रेस में, शायद बच्चे थोड़ा ज़्यादा देखते हैं मूवीज़, तो इंडिया को ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा कि नॉर्थ में क्या है कश्मीर और साउथ में क्या है कन्याकुमारी, ईस्ट में क्या है अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट में क्या है गुजरात। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर्स लॉन्ग। फ्रंटियर का अगर आप मीनिंग देखेंगे, सरहद, एक तरीके से बाउंड्री कह सकते हैं इसको, यानी कि जो दो स्टेट्स को ब्रेक करे या दो कंट्रीज को ब्रेक करने वाली लैंड हो, ठीक है, बाउंड्री बेसिकली आप कह सकते हैं। लैंड फ्रंटियर यानी कि जहां से लैंड का डिवीजन होता हो ऑफ इंडिया, वो है लगभग 15,200 किलोमीटर्स लॉन्ग। द कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन होती है जो वाटर बॉडीज से कट करेगी, क्रॉस करेगी। तो जो कोस्टल एरियाज यानी कि जो समुद्रीय तटीय रेखा जो हमारी होती है, वो जो फैली हुई है वो लगभग 6,100 किलोमीटर लॉन्ग है। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन यानी कि जो पूरी कोस्ट लाइन फैली हुई है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द स्क्रैच्ड आइलैंड्स, इज अबाउट 7,516.6 किलोमीटर्स। यानी कि जो हमारे आइलैंड्स हैं दोनों, उनकी बाउंड्रीज भी अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो लगभग कितनी है 7,516.6 किलोमीटर्स। सो अभी हमने क्या पढ़ा है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, उनकी लेंथ कितनी है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि इंडिया के नेबर्स कौन से हैं, यानी कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं, वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं और कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो इंडिया शेयर्स इट बाउंड्री विद मैनी कंट्रीज। इंडिया की बाउंड्रीज, क्योंकि एक इंडिया बहुत ही विविड है, बहुत ही बड़ा है, विस्तृत है, फैला हुआ है लार्ज एरिया में, तो इंडिया की जो पड़ोसी होंगे वो भी ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इंडिया की बाउंड्री से बहुत सारी कंट्रीज की बाउंड्री लगती है। दीज कंट्रीज आर कॉल्ड अवर नेबर्स। तो ये जो कंट्रीज है इनको हमारे पड़ोसी के नाम से हम बोल सकते हैं, यानी कि ये हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं और अवर नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। दीज कंट्रीज आर एज फॉलोज। अब वो कंट्रीज हैं कौन सी? सो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यहाँ पे है पाकिस्तान और इसके ऊपर क्या है अफगानिस्तान। ये दोनों कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। उसके बाद नेपाल, भूटान एंड चाइना, और ये कहाँ पे लाई करते हैं, नॉर्थ में। नॉर्थ का मतलब ये वाला एरिया, चाइना आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे है भूटान, ये छोटा सा एरिया, और इस साइड में है नेपाल। तो चाइना, भूटान और नेपाल, ये तीनों कहाँ पे पड़ेंगे, नॉर्थ में, यानी कि ऊपर की साइड, ठीक है। उसके बाद आता है बांग्लादेश एंड म्यांमार टू द ईस्ट। म्यांमार तो यहाँ पे है, इसको म्यांमार भी बोल देते हैं कभी कभी। तो म्यांमार और बांग्लादेश, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, हमारे ईस्ट में पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका एंड मालदीव्स टू द साउथ। श्रीलंका ये वाली कंट्री है और मालदीव्स भी एक तरीके से, वैसे तो ये मतलब आइलैंड ही है, बट ये भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में ही इंक्लूड होता है। सो ये कहाँ पे आते हैं, हमारे साउथ में। पर एक कंडीशन है यहाँ पे, देखो ये सब जो कंट्रीज़ हमने अभी डिस्कस की हैं, ये इंडिया की बाउंड्रीज़ को लैंड से टच कर रही हैं, यानी कि लैंड से ये जुड़ती हैं या एक दूसरे को डिवाइड करती हैं। पर जो श्रीलंका है, आप देखेंगे ध्यान से मैप में कि ये बीच में वाटर है, कोई लैंड के थ्रू ये कनेक्टेड नहीं है। इसी तरीके से मालदीव्स भी लैंड से कनेक्टेड नहीं है। सो श्रीलंका एंड मालदीव्स डू नॉट शेयर लैंड बॉर्डर्स विद दैम इंडिया। तो ये दोनों इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे दो एक्सेप्शंस बताओ कि जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, तो वो दो कंट्रीज कौन सी हैं, श्रीलंका एंड नेक्स्ट वन इज मालदीव्स। वेरी गुड। सो अच्छा, एक और बात कि जैसे हमने इतनी सारी कंट्रीज़ के बारे में बात की, कुछ होते हैं ना बहुत अच्छे क्लोज नेबर्स होते हैं जिनके घर हम बहुत ज़्यादा आना जाना रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दूर से हाय हेलो रखते हैं। तो इसी तरीके से नेपाल और भूटान ऐसे दो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, और वहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा की कोई नीड नहीं होती,
सो इस बात को हमेशा याद रखें। अब यहाँ पे एक क्विक रिवीजन दिया हुआ है, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है आप इसको दोबारा से रिपीट करेंगे और इनको फिल करेंगे। उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि आपने जो फिल किया वो सही किया है या नहीं किया। अब टर्न कर लो नेक्स्ट पेज, यानी कि पेज नंबर 2, पॉलिटिकल डिवीजन। अब हमने क्या पढ़ी है, अभी हमने नेबरिंग कंट्रीज पढ़ ली कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया का डिवीज़न किस तरीके से किया गया है। अब इंडिया ऐसा तो नहीं है कि हम इंडिया में सिर्फ एक कंट्री का ही नाम है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, इंडिया एक बहुत ही विशाल देश है, ह्यूज कंट्री है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 125 करोड़। तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 125 करोड़ के आसपास है। सो इन ऑर्डर टू रन अवर कंट्री स्मूथली का मीनिंग होता है आराम से, यानी कि इजीली, लड़ाई झगड़े कम से कम हो, ठीक है। तो इंडिया को क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है और सबके बीच में कन्फ्लिक्ट रहती है, यानी कि कोई किसी का कुछ व्यू पॉइंट होता है, किसी का कुछ मानना होता है, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो और एक सिस्टम फॉलो करें, इसीलिए हमने इतनी बड़ी लैंड को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। सो इट इज़ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, 9 यूनियन टेरिटरीज, वेरी गुड, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया है यानी कि दिल्ली, वो भी किस में आती है? यूनियन टेरिटरीज में आती है, ठीक है। सो अब एक और बात, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड, ये 3 कब बने हैं? ये बने हैं 2000 में, ठीक है। और तेलंगाना कब बना था? 2014 में, यानी कि आई थिंक सब बच्चे हो गए थे, है ना, हम कुछ ईयर्स के होंगे शायद, मैनी ऑफ यू। सो तेलंगाना कब फॉर्म हुआ था? 2014। अब आप फाइंड आउट करो हरियाणा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब हरियाणा के स्टूडेंट हैं या हरियाणा के बच्चे हैं, तो हमें अपने स्टेट का तो पता होना ही चाहिए कि हमारा स्टेट कब फॉर्म हुआ था। तो मैं आपसे पूछूंगी कि हमारा स्टेट कब बना था, इसके बारे में पता कीजिए। सो let's learn the name of different states and union territories of India along with their capital। हमारे कौन से स्टेट्स हैं, उनके नेम और फिर उनकी कैपिटल्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रोनाउंसिएशन इनकी बता दी है, इनको अभी आप पहले नोटबुक में राइट डाउन करेंगे सभी स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स। उसके बाद हम उन यूनियन टेरिटरीज नोट डाउन करेंगे। आप ये लर्न करोगे, इनकी स्पेलिंग भी लर्न करोगे, स्टेट्स के सारे नेम आपको पता होने चाहिए और उनकी कैपिटल्स भी आपको पता होनी चाहिए। सो इतने सारे स्टेट्स में से राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? वेरी गुड, गोवा। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन। एरिया तो राजस्थान का सबसे बड़ा मान लिया और गोवा का सबसे छोटा, पर पॉपुलेशन की कहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं? तो उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। फिजिकल डिवीजन, अब हम फिजिकली बेसिस पे कि कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स हैं हमारी कंट्री में, इंडिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंडिया हैज़ अ वेरिड लैंड फॉर्म्स। वेरिड का मतलब विभिन्न, विविध, अलग अलग, डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि इट हैज़ हाई माउंटेन्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वास्ट प्लेन्स, समतल भूमि है, लैंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट एरिया है यानी कि रेगिस्तान है, प्लेट्यू हैं यानी कि जो लैंड्स हैं यानी कि जो प्लेन्स हैं उनसे थोड़े ऊंचे बट फ्लैट हैं, पहाड़ी की तरह या माउंटेन की तरह कोन शेप में नहीं हैं। एंड आइलैंड्स यानी कि जो वाटर से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मैनी रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माउंटेन्स, बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि माउंटेन से बहती हैं। एंड प्लेट्यूज, माउंटेन और प्लेट्यूज से बहती हैं। एंड फ्लोज थ्रू द प्लेन, उन कहाँ तक आती हैं? प्लेन्स तक आती हैं। इंडिया कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स। इंडिया कुछ फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड होती है, जैसे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। सो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। We will study about these physical divisions and the life of people in these places in the coming lesson। यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये लैंड फॉर्म्स हैं और उनमें कैसे कैसे लोग रहते हैं। क्या आपको पता है कि K2
को हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और जो कि कहाँ सिचुएटेड है, इंडिया में, और वो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। सो क्विक रिवीजन 2 भी है। अब देखो, हमने क्विक रिवीजन 1 नहीं डिस्कस किया और 2 नहीं किया। आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्विक रिवीजन 1 भी फिल आउट करेंगे अपने आप, और 2 भी फिल आउट करेंगे। साथ में ही पीछे बैक एक्सरसाइज दी हुई है क्वेश्चन आंसर तक, यहाँ तक आप इसको फिल करेंगे, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। सो थैंक यू एंड डू द वर्क इन योर बेस्ट वे।